प्राइम टाइम न्यूज को पेश करने में ताउन किया है इनसाइट इंटरनेशनल स्कूल हैदराबाद। Insight International School Rajendra Nagar branch welcomes you, where our goal is to deliver the finest holistic education with an Islamic orientation for every student. Our newly constructed building provides the state-of-the-art facilities for learning. With the Cambridge pathway, we prepare students for life, nurturing informed curiosity and a lifelong passion for learning. We weave Islamic manners, values, and moral ethics into daily congregational prayers and activities. Join us for a complete holistic development of your child. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। तेलंगाना में 11 फरवरी को होंगे बल्दी इंतखाबात, 13 फरवरी को होगी वोटों की गिनती। रियासती इलेक्शन कमिश्नर रानी कमोदी ने जारी किया शेड्यूल। फोन टैपिंग केस में बिहार के साबिक रुकने पार्लिमान संतोष कुमार से SIT की पूछताछ, सिक्योरिटी का वसी तर बंदोबस्त। तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने रियासती हुकूमत पर ड्रग्स को कंट्रोल करने में नाकामी का लगाया इल्जाम, कहा हुकूमत को जामे इक़दाम करना जरूरी। मेरे और राहुल गांधी के साथ 26 जनवरी की यौम जमहूरियत तकरीब में हुकूमत का रवैया दुरुस्त नहीं था, कांग्रेस सदर खड़गे ने लगाया इल्जाम, कहा मोदी को जमहूरियत और अपोजिशन की नहीं है परवाह। हिंदुस्तान और यूरोपियन यूनियन के दरमियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का बाज़ाब्ता ऐलान, वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने फ़वायद वाज़ेह किए। यूरोपियन यूनियन की क़यादत से दिल्ली में मुलाकातें। दुनिया भर में जंगल का कानून आम हो गया, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने ज़ाहिर की फ़िक्रमंदी, रुकन ममालिक से UN का एहतराम करने की अपील। और हमास ने जंगबंदी के मुआहदे की तमाम शराइत को पूरा कर दिया, अब इसराइल अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास के सीनियर कायद हुसाम बदरान का बयान। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। तेलंगाना में बल्दी इलेक्शन की तारीखों को ऐलान कर दिया गया है। इलेक्शन नोटिफिकेशन जारी किया गया। तेलंगाना के इलेक्शन कमिश्नर रानी कमोदी ने ऐलान किया कि 11 फरवरी को रायदही होगी और 13 फरवरी को वोटों की गिनती होगी और नतीजे जारी किए जाएंगे। इससे कबल आज सुबह के वक्त स्टेट इलेक्शन कमीशन ने जिला कलेक्टरान और SPs के साथ एक अहम इजलास मुनक़िद किया, जिसमें इंतजाम के हवाले से तफसीली बातचीत की गई। इलेक्शन के तहत 7 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और 116 बलदियात के लिए रायदही अमल में लाई जाएगी। రోజు 7 మున్సిపల్ కార్పొరేషన్స్ తర్వాత 116 మంది మున్సిపాలిటీస్ కోసం ఈ ఎలక్షన్స్ విల్ బి దేర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ త్రూ ద బ్యాలెట్ అండ్ 13th రోజు రిజల్ట్ ఉంది. మధ్యలో 1 డే ఇన్ కేస్ ఎనీ రిపోర్ట్ ఈస్ దేర్ ఆ 12th నాడు దానికోసం ఇది పెట్టాము. ఈ మొత్తం మన పోలింగ్ స్టేషన్స్ అన్నీ హైపర్ సెన్సిటివ్, తర్వాత క్రిటికల్, తర్వాత నార్మల్, ఈ 3 డివిజన్ చేస్తూ ప్రతి పోలింగ్ స్టేషన్లో కంపల్సరీ మన పోలీస్ సిబ్బంది మన ఎంపిక చేస్తున్నాము. మన తెలంగాణ పోలీస్ సిబ్బందితో పార్లమెంట్ వాళ్ళు సిబ్బంది కూడా దాదాపు 2000 మంది దే విల్ బి అసిస్టింగ్ అస్. మన గ్రామ పంచాయతీ ఎలక్షన్లో కూడా వాళ్ళు బాగానే మాకు హెల్ప్ చేయడం జరిగింది అండ్ చాలా సజావుగా మనం ఈ గ్రామ పంచాయత్ ఎలక్షన్ కూడా కండక్ట్ చేశాం. ఈ మధ్యలో గ్రామ పంచాయతీ ఎలక్షన్ అప్పుడు ఆల్రెడీ 1800 వెపన్స్ అది డిపాజిట్ చేయడం జరిగింది. ఇంకా కొన్ని వెపన్ ఈ అర్బన్ ఏరియాస్లో ఉంటే అది కూడా మనం పక్క డిపాజిట్ చేస్తాము. తర్వాత ఈ రోజు నుంచి ఈ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ అమల్లో వస్తున్నాయి కాబట్టి ఇమీడియట్లీ ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్ అది మనము తనిఖీ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తాము. సో క్యాష్ కానీ, లిక్కర్, తర్వాత ఫ్రీ బీచ్, డ్రగ్స్ అండ్ మెటల్ ఈ ఐటమ్ కోసం మనము ఈ తనిఖీ పక్క అది చేస్తాం. సో మినిమం 50,000 అది దాకా క్యాష్ క్యారీ చేయొచ్చు. ఈ మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి ఆ ప్రాంతంలో 50,000కి ఎక్కువ క్యాష్ మొదలవుతాయి. ఎలక్షన్ నోటీసు ఆ రోజులందరూ కూడా రేపు ఇష్యూ చేస్తారు. ఈ ఎలక్షన్ నోటీస్ను అనుసరించి నామినేషన్స్ యొక్క ప్రక్రియ 31వ తేదీ స్క్రూటినీ, దాని తర్వాత విత్డ్రావల్, తర్వాత పబ్లికేషన్ ఆఫ్ ది కంటెస్టింగ్ క్యాండిడేట్స్ 3వ తేదీ అవుతుంది. తదుపరి
వాళ్ళు ప్రచారానికి వెళ్తారు. ప్రచారానికి వెళ్ళిన తర్వాత డేట్ ఆఫ్ పోలు 11వ తేదీ ఫిబ్రవరి. ఏదైనా రీపోల్ కనుక ఉన్నట్టయితే 12వ తేదీ నిర్వహిస్తాము. కౌంటింగ్ 13వ తేదీ 8 గంటల నుండి ఉంటుంది. డిక్లరేషన్ ఆఫ్ రిజల్ట్స్ కూడా కౌంటింగ్ ముగిసిన వెంటనే డిక్లేర్ చేయబడతాయి. సో ప్లీజ్ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఎట్ ద ఎలక్షన్ షెడ్యూల్ దట్ ఈస్ ఆన్ యువర్ స్క్రీన్స్. ది ఎలక్షన్ నోటీస్ విల్ బి ఇష్యూడ్ టుమారో, దట్ ఈస్ 28/1/26, and they will start taking the nominations from tomorrow. The last day for filing the nominations is 31st January 2026. After scrutiny and disposal of appeal, the last day of withdrawal and also the final list of contesting candidates will be given on the 3rd February. The date of poll is 11th February. Counting will be done on the 13th and the results will be declared soon after the counting process is completed. So this is the schedule for direct elections. फोन टैपिंग केस में बीआरएस के साबिक रुकन पार्लिमान संतोष कुमार को एसआईटी ने नोटिस जारी की, जिसके बाद वो आज 3 बजे जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन पहुंचे और एसआईटी के रूबरू हाजिरी दी। याद रहे कि इस मामले में साबिक खुजरा हरीश राव और केटीआर से एसआईटी पहले ही पूछताछ कर चुके हैं। एसआईटी नोटिस पर रद्दअमल जाहिर करते हुए संतोष कुमार ने कहा था कि वो कानून का मुकम्मल एहतराम करते हैं और एसआईटी के सामने हाजिर होकर जाँच में मुकम्मल ताउन भी कर रहे हैं। इस दौरान सिक्योरिटी का वसी तर बंदोबस्त किया गया था। एसआईटी के रूबरू पेशे सवाल संतोष कुमार ने साबिका रियासती वजीर केटीआर से मुलाकात भी की। तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने रियासती हुकूमत पर ड्रग्स को कंट्रोल करने में नाकामी का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि हुकूमत को जामे इक़दाम करना ज़रूरी है। गांजा स्मगलर्स की जानिब से एक पुलिस एहलकार पर हमले के वाक़े के बाद कविता मीडिया से बातचीत करते हुए रद्द-ए-अमल जाहिर कर रही थी। तेलंगाना में ड्रग्स का धंधा करने वालों का राज चल रहा है। शर्मनाक बात है, एक एक्साइज कांस्टेबल के ऊपर उन्होंने हमला कर दिया। आज वो एक्साइज कांस्टेबल बहुत क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल में है। हम उनके परिवार के साथ खड़े हैं, उनको हिम्मत देने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है ड्रग्स को कंट्रोल करने में, गांजा को कंट्रोल करने में। तो हम ये आज मांग करते हैं कि एक्साइज डिपार्टमेंट के पास और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास अगर वेपन्स दिया जाए, क्योंकि उनके ट्रेनिंग के अंदर आता है, वो वेपन्स यूज करने में भी ट्रेंड होते हैं। अगर उनको वेपन्स देंगे तो स्मगलर्स को और ड्रग पेडलर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तेलंगाना की सरकार से हम ये मांग करते हैं, तुरंत आप ये कदम उठाइए और एक्साइज वालों को और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बचाइए। थैंक यू। और आपको बताते चले कि निजामाबाद जिला में गांजा स्मगलरों के ग्रोह को रोकने की कोशिश के दौरान जख्मी होने वाली एक्साइज कांस्टेबल सुमैया की हालत नाजुक है। हैदराबाद के निम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर ने हेल्थ बुलेटिन जारी करते हुए सूरत हाल को तशवीशनाक करार दिया। जुमे के दिन निजामाबाद जिला में गाड़ियों की तलाशी के दौरान गांजा स्मगलर ग्रोह ने फरार होने की कोशिश में कांस्टेबल सुमैया को अपनी कार से टक्कर दे दी। डॉक्टरों के मुताबिक कार सुमैया के पेट के ऊपर से गुजरी, जिसकी वजह से उनका जिगर और गुर्दे बुरी तरह मुतासर हो गए, जबकि पसलियां भी टूट गई। निम्स के डॉक्टरों ने बताया कि उनका बायां गुर्दा निकाल दिया गया और वो इस वक्त वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। बीजेपी तेलंगाना के सदर रामचंद्र राव ने मीडिया से बातचीत की और दावा किया कि एसआईआर बोगस वोटों को रोकने के लिए है। उन्होंने कांग्रेस और अपोजिशन जमातों की जानिब से मुखालिफत को लेकर सख्त नुक्ताचीनी की। SIR intention is to weed out the duplicate and bogus votes and also revise the voter list, which has not been done for the years. And in this process, in the voter list, many will be dead, many will be shifted, many will be transferred. So all these things, votes definitely, it will be removed from the voter list because they are not there. So I don't know why the Congress and the Samajwadi Party and the other members like TMC, India alliances want to depend on only the votes on which are not existing. So therefore, so far they have been relying only on the non-existent voters, and that is the reason why they are opposing SIR. SIR is basically to revamp the entire voter list legally, which is also necessity under the constitution and under the rules. So therefore, the voter list has to be revamped, voter list has to be revised,
and voter list has to be updated with the present voters. So therefore, I think there is no sense in opposing this by the Congress and SP and other India alliances, because they are bound to lose the elections. As a caveat, they are trying to blame the SIR. Otherwise, there is no truth, no basis, and their argument is not tenable in the eyes of the law or in the eyes of the people. So therefore, this is only a political gimmick by the Congress party and their partners to oppose. ईमानदाराना मशवरा देने और हेल्थ केयर में शफाफ खदमात अंजाम देने के मकासद के तहत शरीयतबाद में FM सिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की खदमात का आगाज़ कर दिया गया है। तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन अलहाज गुलाम अफजल बयाबानी अलमारूफ खुसरो पाशा ने इसका रस्मी तौर पर इफ्तिताह किया। हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। सियासत TV से बातचीत के दौरान डॉक्टर अहमद ने बताया कि ख़वातीन और बच्चों के इलाज के हवाले से मुनासिब और सही बर वक्त मशवरा दिया जाएगा। बेसिकली अब हमारा 7 साल का एक्सपीरियंस है इन सिटी हॉस्पिटल फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। हमारा हॉस्पिटल एक स्पेशलाइज्ड सेंटर है फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। लेडीज़ के वास्ते हाई रिस्क ऑब्स्टेटिक्स से लेके जनरल सर्जरी, ऑन्कोलॉजी, ब्रेस्ट कैंसर, बेरियाट्रिक्स, ये सारे सर्विसेज हमारे पास मौजूद हैं। बच्चों के वास्ते हमारे पास लेवल 3 NICU, लेवल 3 पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट, पीडियाट्रिक सर्जरी, ये पूरे फैसिलिटीज़ हमारे पास कॉरपोरेट अंदाज में मौजूद हैं। तो हम लोग एक बेसिक कोशिश ये है कि ये हेल्थ स्टैंडर्ड जो मेंटेन किए जाते हैं एक अच्छे लेवल के हॉस्पिटल में, ये सहूलतें सिर्फ जो अफोर्ड कर सकता है सिर्फ उन तक महदूद ना रह सके, बल्कि कोशिश ये की जाए कि हर कोई जिसको इलाज की ज़रूरत है वो एक स्टैंडर्ड हेल्थ केयर जो रिक्वायरमेंट है उसका एक्सेस उनको देना चाहिए। तो उसमें हम लोग आज जो है 2 सर्विसेज लॉन्च किए हैं। एक ऑनेस्ट ओपिनियन की सर्विस है, वो बेसिकली जिसमें हम ये चाह रहे हैं कि कोई भी पेशेंट को अगर उनके करीब के कोई भी जो डॉक्टर हैं अगर कोई सर्जरी एडवाइस किए हैं, कोई ICU ट्रीटमेंट अगर एडवाइस किए हैं वुमेन एंड चाइल्ड से रिलेटेड, तो इंशाल्लाह उसके रिपोर्ट्स हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है जिसको हम आज लॉन्च किए हैं 9154-342-172 एंड 9154-342-171। तो ये नंबर्स आप लोगों को इंशाल्लाह आपके पास रहेंगे। आप ये नंबर्स पे कभी भी राउंड द क्लॉक हमको आपके बच्चे से रिलेटेड या आपके घर के लेडीज से रिलेटेड कुछ भी रिपोर्ट्स अगर हैं तो इसके ऊपर आप लोग भेज सकते हैं। और इंशाल्लाह हमारी जो पूरी एक्सपर्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स है इसमें अपना ऑनेस्ट ओपिनियन जो बिल्कुल जो ज़रूरत है, जितना ज़रूरत है उससे कुछ बढ़ के नहीं, उसकी हम कोशिश करते हुए आपको ओपिनियन फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्विस दी जाएंगी। वरंगल के मारूफ माहिर तालीम डॉक्टर राज मोहम्मद ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूलों में दाखिले जारी हैं, जहां तेलंगाना हुकूमत हर तालिब इल्म पर 1,20,000 रुपये से ज़्यादा रकम खर्च कर रही है। उन्होंने बताया कि तलबा और तालिबात के लिए अलहदा कैंपस, नमाज हॉल, दीनियात के मज़ामीन के साथ कंप्यूटर की जदीद तालीम भी दी जा रही है और ये तमाम सहूलतें मुफ्त में दस्तियाब हैं। इस मौके पर तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूलों के ज़िम्मेदारान और दीगर शख्सियात ने अपील की कि वालिदैन इस ज़रीन मौके से फ़ायदा उठाएं और अपने बच्चों को दाखिले यकीनी बनाएं। ఒక మంచి అవకాశం పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం మైనారిటీ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ అనేటి వరంగల్లో జక్కలుద్దిలో MPC BIPC క్లాసులు నడుస్తున్నాయి. గర్ల్స్ 1లో గర్ల్స్ కోసం వరంగల్ గర్ల్స్లో MPC BIPC నడుస్తున్నాయి. మిగతా దగ్గర CEC HEC లాంటి కోర్సులు మరియు మిగతా కోర్సులన్నీ కూడా ప్రారంభించడం జరిగింది. 5th క్లాస్ నుంచి ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ వరకు మైనారిటీ సోదరులకు మంచి అవకాశం, మంచి భోజన వసతులు మరియు బట్టలు, బ్యాగులు, అన్ని రకాల సౌకర్యాలు, మంచి విటమిన్స్తో కూడుకున్న భోజనము, ఇదంతా కూడా గవర్నమెంట్ సదుపాయాలు చేకూర్చింది. మరి ముస్లిం సోదరులంతా కూడా మంచి స్థాయికి ఎదగాలని సమాజం। और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। Insight International School Rajendra Nagar branch welcomes you, where our goal is to deliver the finest holistic education with an Islamic orientation for every student. Our newly constructed building provides the state-of-the-art facilities for learning. With the Cambridge pathway, we prepare students for life, nurturing informed curiosity and a lifelong passion for learning. We weave Islamic manners, values and moral ethics into daily congregational prayers and activities.
Join us for a complete holistic development of your child. सियासत टीवी के न्यूज़ बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है। हैदराबाद के नामपली इलाके में फायर एक्सीडेंट की याद भी ताज़ा थी कि इस इलाके के करीब एक और खौफनाक आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। विजयनगर कॉलोनी में वाक़ एक मैकेनिक शॉप में आधी रात के बाद अचानक ज़बरदस्त आग लग गई। आग की शिद्दत की वजह से शॉप में खड़ी 3 कारें जलकर खाक हो गई। खुशकिस्मती से हादसे के वक्त मैकेनिक शॉप में कोई मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियाँ मौके पर पहुँच गई। काफ़ी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। चीनी मांझे की वजह से एक 5 साला नन्ही बच्ची की जान चली गई। बाइक पर सामने बैठी बच्ची के गले में मांझे की डोर लपेट गई, जिससे यह हादसा पेश आया। हैदराबाद के कुकटपल इलाके में कौमी शाहराह पर रुनुमा इस वाक़े ने मुकामी लोगों में बरहमी पैदा की है। संक्रांति के 10 दिनों के बाद पेशा इस वाक़े ने फिर एक बार चीनी मांझे के नुकसानात को आवाम के सामने लाया। डॉक्टर ने बताया कि अस्पताल पहुँचने तक शदीद खून बह चुका था और गला तकरीबन 2.5 इंच गहराई तक कट गया। कुकटपली के सीआई के वेंकट सुब्बाराव ने बताया कि इस वाक़े के जिम्मेदार कौन हैं, इस हवाले से हम तफसीली तहकीकात कर रहे हैं। और बढ़ते ही चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। कांग्रेस सदर खड़गे ने कहा कि उनके साथ राहुल गांधी के साथ 26 जनवरी के दिन यौम जमहूरिया तकरीब में हुकूमत का रवैया दुरुस्त नहीं था। अपोजिशन और कांग्रेस की तौहीन की गई। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत को न दस्तूर की परवाह है, न अपोजिशन की फिक्र है और न ही मुल्क की जमहूरियत की वो परवाह करते हैं। गमछा डालते हैं, उन्होंने डाल लिया था। फिर उसके बाद जब वो वहां पर हम खाने के लिए बैठे थे, वहां पर वो मोड़ के रखे। अरे उससे मैं तो यहाँ से लेकर वहां और उनके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मिल के मैं जब आ रहा था उस वक्त भी बोला था। सब ये इश्यू बना रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, हमको आपने इन्विटेशन दिया, हमने ये तो हमारा कर्तव्य है, हम तो संविधान के बचाने के लिए पूरी हमारी कोशिश है। और संविधान को अपमान करने वाले लोग 2 अपोजिशन लीडर्स को तीसरे पंक्ति में बिठाते हैं और वो स्टेट मिनिस्टरों के साथ खड़ा करते हैं और स्टेट मिनिस्टर्स के साथ वहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मिलने के लिए भी ठहरे हैं वो लाइन में, तो हमको स्टेट मिनिस्टर्स के लाइन में डाल दिए, बिठाते वक्त भी स्टेट मिनिस्टर के लाइन में डाल दिए। तो ये इतना अपमान अपोजिशन का कर रहे हैं और इसको पर्पजली यहाँ पर जो मणिपुर में वो सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसके नहीं मणिपुर में फिर एक बार सरकार अपनी इसी पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और आसाम में जो चुनाव हो रहे, ये सब इसको लेके वो छोटी चीजों को, यानी हम तो गौरव करते हैं, हम जाते हैं और मणिपुर से हमारा पदयात्रा निकाली, राहुल जी ने वहां से निकाले। तो ये इसको बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। लेकिन मैं पूछता हूँ, जो आदमी मणिपुर के लोगों को, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए लड़के उन्होंने निकले और सबको बातें की, और ये लोग वहां जाने के लिए भी डरते थे मणिपुर। ऐसे लोग नॉर्थ ईस्ट का अपमान कांग्रेस ने किया, ये कहने का, ये मैं समझता इसको कंडेम करता हूँ। ये पर्पजली कर रहे हैं, इलेक्शन के लिए कर रहे हैं। और दूसरी बात, ये हमेशा कुछ ना कुछ राहुल गांधी की बातें रख के कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। पहले तो मुझे उत्तर चाहिए कि मैं सीनियर मोस्ट लीडर हूँ, पार्लियामेंट में था, लोकसभा में हूँ, कई असेंबली। मेरे जैसे सीनियर आदमी को जो कैबिनेट रैंक तो है और उनको भी कैबिनेट रैंक है, तुम तीसरे पंक्ति में बिठा के सामने बच्चों को बिठाते, बाजू में स्टेट मिनिस्टरों को भी बिठाते, तो ये तुमने सारासार कांग्रेस का भी अपमान किया और अपोजिशन लीडर का भी अपमान किया और कॉन्स्टिट्यूशन को आपने एक हम लोगों को निचला दिखाने का काम भी दिए। और ये इस बात का मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे सेक्रेटरीज को भेज के मैंने
वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने आज दिल्ली में यूरोपीय कौंसिल के ज़िम्मेदारान से मुलाकात की। हैदराबाद हाउस में हुई इस मुलाकात के दौरान रहनुमाओं के दरमियान खुशगवार माहौल और बाहमी क़ुर्बत देखने को मिली। इस कबल यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं ने अपने सरकारी दौरे हिंदुस्तान के तहत राजघाट पहुँचकर कौम के बाप महात्मा गांधी को खिराज पेश किया। नई दिल्ली में हुई 16वीं हिंदुस्तान यूरोपीय यूनियन सरबराही इजलास से मांग थी, जिसकी मुश्तरका मेज़बानी मोदी कर रहे हैं। मोदी ने हिंदुस्तान और यूरोपीय यूनियन के आज़ाद तिजारती मुआहदे को तमाम मुआहदों की माँ करार देते हुए कहा कि दुनिया की दो बड़ी मईशतों के दरमियान शराकत की बेहतरीन मिसाल है। उन्होंने कहा कि यह मुआहदा इसलिए अहम है कि इसके ज़रिए दो मईशतें जुड़ी हैं जो आलमी मजमूई घरेलू पैदावार के 1/4 हिस्से की नुमाइंदगी करती हैं। हिंदुस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का भी ऐलान कर दिया गया। मोदी के मुताबिक इस मुआहदे से तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और रोजगार के भी नए मौके पैदा होंगे। पार्लियामेंट के बजट इजलास से आगाज से कबल आज दिल्ली में कुल जमाती इजलास हुआ, जिसमें तकरीबन तमाम पार्टियों के ज़िम्मेदारान ने शिरकत की। वज़ीर पार्लिमानी उमूर किरण रिजिजू, राजनाथ सिंह और दीगर लीडरों ने भी मीटिंग में हिस्सा लिया। हुक्मरान जमात के लीडरों ने पार्लियामेंट का सेशन पुरअमन अंदाज में मुनक़िद करने के लिए अपोजिशन से ताउन तलब किया है। कांग्रेस लीडर मुमताज़ पटेल ने कहा कि कांग्रेस वो पार्टी है जहां सबको एक नज़र से देखा जा रहा है। कांग्रेस तमाम मज़ाहिब और इसके मानने वाले लोगों को साथ लेकर चलती है। आइए देखते हैं उनका ये बयान। धर्मनिरपेक्षता में मानती है, सारे तबकों को, सारे धर्मों को साथ में लेकर चलती है, जिसकी वजह से जो आज़ादी के टाइम के वक्त जो एक स्ट्रगल था उसमें देश भर के लोग साथ में जुड़े और एक विचारधारा के साथ जुड़े। यही विचारधारा को लेकर अगर मैं मुसलमान समाज की बात करूं तो वो कांग्रेस पार्टी से इसीलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि जो मूल्य सिद्धांत कांग्रेस पार्टी के हैं वो उनसे मिलती हैं। ये जो आजकल प्रोपोगंडा चला रहे हैं कि ये कोई मुस्लिम लीग पार्टी है, ये गलत बात है, ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सबको साथ लेकर चला है। अगर आप देखेंगे तो एक माइनॉरिटी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी हमारे देश को मिले थे कांग्रेस पार्टी से ही। हमने मुसलमान राष्ट्रपति देखे हैं, अभी अब्दुल कलाम आज़ाद जी के समय नहीं, बट पहले फखरुद्दीन अहमद साहब के टाइम पर भी। पर अगर मुस्लिम वरिष्ठ नेता कुछ बोल रहे हैं और ख़ास करके मुस्लिम समाज को लेकर, मुस्लिम वोटर्स को लेकर कह रहे हैं, तो इस पे गंभीरता से सोचना चाहिए, इस पे चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि जो हमारे वोटर्स हैं, मुस्लिम वोटर्स की खास करके मैं बात करूं, अगर उन्हें, जो कि मेरा भी तजुर्बा रहा है, अगर उन्हें कोई तीसरा विकल्प मिलता है, दिखता है, तो वो आकर्षित हो जाते हैं। हाल ही में हमने अभी बिहार के चुनाव में भी देखा कि जिस तरीके से AIMIM जीत कर आई, महाराष्ट्र में देखा है, बाकी सब अगर हम स्टेट्स में भी देखते हैं, यूपी में देखा, जहां जहां मतलब एक कोई तीसरा विकल्प मिलता है तो आकर्षित हो जाते हैं। ये क्यों हो रहा है, इस पे हमें सोचना चाहिए। कम्युनिकेशन गैप जरूर कहीं ना कहीं लग रहा है। सिर्फ चुनाव के वक्त हमें मुसलमान वोटर नहीं याद आने चाहिए। उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी जो तकलीफें हैं, उनके साथ जो अत्याचार होते हैं, उसके लिए कांग्रेस पार्टी को और मजबूती से साथ में खड़े रहना पड़ेगा। और अगर पार्टी के अंदर के नेता कुछ बोल रहे हैं तो उन्हें बुलाइए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि कानून की हुक्मरानी आलमी अमन और सलामती की बुनियाद और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर का असल जौहर है, लेकिन दुनिया भर में इसकी जगह जंगल का कानून आम हो गया है। उन्होंने कहा कि कानून की हुक्मरानी आलमी अमन और सलामती की बुनियाद और UN के मंशूर का असली जौहर है। उन्होंने बैनुल-अक़वामी कानून की बालादस्ती पर सलामती कौंसिल के आम मुबाहिसे में खिताब किया और कहा कि आलमी कानून की खुली खिलाफ वर्जी और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर से बेधड़क लापरवाही के मुजाहरे देखे जा रहे हैं। गाज़ा से यूक्रेन, म्यांमार और वेनेजुएला तक दुनिया भर में कानून के हवाले से मनमानी की जा रही है। रुकन ममालिक बेखौफ व ख़तर आलमी कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, जिसमें ताकत का गैर कानूनी इस्तेमाल, शहरी तनसीबात को निशाना बनाना, इंसानी हकूक़ की पामाली, जौहरी हथियारों की गैर कानूनी तैयारी, गैर आइनी तब्दीली और इंसानी इमदाद की राह में रुकावटें भी इसमें शामिल हैं। कानून की ऐसी पामारी से ख़तरनाक मिसालें कायम होती हैं। UN सेक्रेटरी ने अपील की कि तमाम ममालिक बैनुल-अक़वामी क़वानीन का मुकम्मल एहतराम करें।
फ़लस्तीनी इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास के सीनियर कायद हुसाम बदरान ने कहा कि हमास ने जंगबंदी के माहदे की तमाम शराइत को पूरा कर दिया, जिसमें तमाम जिंदा और फौजशुदा इसराइली कैदियों की वापसी शामिल है। बदरान ने कहा कि गजा में आखिरी इसराइली कैदी की लाश की बाजियाबी ने तमाम बहाने ख़त्म कर दिए जो जालिम इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू माहदे पर अमलावरी को रोकने के लिए पेश करते रहे। उन्होंने सालिसों और माहदे के ज़ामिन ममालिक से मज़ीद संजीदा इक़दामात और दबाव का मुतालबा किया ताकि इसराइल को माहदे की मुकम्मल शराइत पर पाबंद किया जा सके। उन्होंने खबरदार किया कि इसराइली तातुल अमन कायम करने के इम्कानात को ख़तरात में डाल रहा है। हमास कायद ने जोर दिया कि नेतन्याहू को गजा से फौरी तख्लिया करना चाहिए, इंसानी इमदाद पहुँचाना चाहिए और रफ़ा के रास्ते को दोनों तरफ से खोलना चाहिए, क्योंकि ये मुआहदे की बुनियादी जिम्मेदारियों में शामिल है। और आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। तेलंगाना में 11 फरवरी को होंगे बल्दी इंतखाबात, 13 फरवरी को होगी वोटों की गिनती। रियासती इलेक्शन कमिश्नर रानी कमोदी ने जारी किया शेड्यूल। फोन टैपिंग केस में बिहार के साबिक रुकने पार्लिमान संतोष कुमार से SIT की पूछताछ, सिक्योरिटी का वसीतर बंदोबस्त। तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने रियासती हुकूमत पर ड्रग्स को कंट्रोल करने में नाकामी का लगाया इल्ज़ाम, कहा हुकूमत को जामे इक़दाम करना ज़रूरी। मेरे और राहुल गांधी के साथ 26 जनवरी की यौम जमहूरियत तकरीब में हुकूमत का रवैया दुरुस्त नहीं था, कांग्रेस सदर खड़गे ने लगाया इल्ज़ाम, कहा मोदी को जमहूरियत और अपोजिशन की नहीं है परवाह। हिंदुस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का बाज़ाब्ता ऐलान, वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने फ़वायद वाज़ेह किए। यूरोपीय यूनियन की क़यादत से दिल्ली में मुलाकातें। दुनिया भर में जंगल का कानून आम हो गया, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने जाहिर की फिक्रमंदी, रुकन ममालिक से UN का एहतराम करने की अपील। और हमास ने जंगबंदी के माहदे की तमाम शराइत को पूरा कर दिया, अब इसराइल अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास के सीनियर कायद हुसाम बदरान का बयान। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़। प्राइम टाइम न्यूज़ को पेश करने में ताउन किया है इनसाइट इंटरनेशनल स्कूल हैदराबाद। Insight International School Rajendra Nagar branch welcomes you, where our goal is to deliver the finest holistic education with an Islamic orientation for every student. Our newly constructed building provides the state-of-the-art facilities for learning. With the Cambridge pathway, we prepare students for life, nurturing informed curiosity and a lifelong passion for learning. We weave Islamic manners, values and moral ethics into daily congregational prayers and activities. Join us for a complete holistic development of your child.